اسلام آباد میں احتجاج کے بعد نظام زندگی ایک مرتبہ پھر بحال ہونا شروع ہو چکا ہے۔ قوم کی سوچ کے ساتھ میں ہوں زاہدہ راؤ۔ آج ہم موجود ہیں جڑواں شہروں کے سنگم یعنی فیض آباد کے مقام پر۔ میں ہوں ملتان سے دلزیب آکاش۔ اسلام آباد میں احتجاج کے بعد نظام زندگی ایک مرتبہ پھر بحال ہونا شروع ہو چکا ہے، لیکن نقصانات اور عوامی مشکلات کے جو اثرات ہیں وہ ابھی تک باقی ہیں۔ اگر ہم بات کریں عوامی مشکلات کی تو 4 روز تک اسلام آباد کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز لگا کر اسلام آباد کو بند رکھا گیا، جس کی وجہ سے عوام تو مشکلات کا شکار ہوئیں، لیکن بڑی تعداد میں جو اسلام آباد میں کاروباری طبقہ ہے اس کو بھی نقصان پہنچا اور وہ بھی کافی مشکلات کا شکار ہوا۔ آج ہم بات کریں گے کاروباری طبقے کے حوالے سے، بزنس کمیونٹی کے حوالے سے، کہ 4 روز کا جو احتجاج تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے، جو کنٹینرز لگا کر جو راستوں میں بندشیں اور رکاوٹیں کھڑی کر کے اسلام آباد کو بند کیا گیا، اس سے جو کاروباری طبقہ ہے وہ کتنا متاثر ہوا ہے اور اب اسلام آباد کے کیا حالات ہیں اور دارالحکومت میں جو بزنس کمیونٹی ہے اس کا کیا کہنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کشمیر سے ہوں۔ یہ بتائیں یہاں پر کہاں رہتے ہیں اسلام آباد؟ میں ادھر ایف کچہری میں۔ یہ بتائیں کہ 4 روز اسلام آباد بند رہا تو کیا مشکلات تھیں؟ بہت مشکلات تھی جی سر، یہ مارکیٹ بند تھی، راستے بند تھے، بہت مشکلات تھی، گاڑیاں، ٹریفک سب کچھ بند تھا۔ یہ جو مارکیٹس بند تھی اس کی وجہ سے آپ کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ یہ مشکلات یہ کوئی سامان نہیں میرا تھا، کوئی چیز لینی ہو تو بہت مشکل ہوتا تھا کہ ہر چیز بند تھی، تو پھر اس وجہ سے بندہ کہیں جانے کے جا بھی نہیں سکتا تھا، کوئی چیز نہیں لے سکتا تھا، ہر دکانیں شکانیں بند تھیں۔ اچھا، تو یہاں پر جو اس ایک شاپ ہے اس کے یہاں پر جو آنر ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ ان کو کیا مشکل پیش آئی، ان کو کتنا نقصان ہوا اس احتجاج کے دوران۔ السلام علیکم۔ ہاں صاحب کیسے ہیں؟ شکر ہے، خیریت۔ احتجاج تھا، مارکیٹیں بند تھیں، جی کیا نقصان ہوا آپ کو، کتنا نقصان ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ 2-3 دن مارکیٹ بند تھا، تکلیف تھا اور کام وام بند تھا۔ تو کیا کتنا ایک نقصان ہوا آپ کو مارکیٹیں بند ہونے کی وجہ سے؟ یہ نقصان ہو گیا، بس کام وام تھوڑا سلو ہو گیا۔ ابھی کیا صورتحال ہے، ابھی بحال ہو گئی؟ ابھی انشاءاللہ بحال ہو رہا ہے احساس۔ کیا کہیں گے، اس طرح کے احتجاج ہونے چاہیے؟ اگر ہونے چاہیے تو حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت کو یہ کہنا چاہیے جو احتجاج کے لیے بندے چھوڑ۔ یارا بھائی دیکھو، مارکیٹیں بند ہوئے، مارکیٹیں بند نہیں ہے، روڈ بند ہوا تھا، ٹھیک ہے، مارکیٹیں کھلا تھا، اور اس طرح روڈ بندش کی وجہ سے لوگ نہیں آ پا رہے ہوں گے مارکیٹ؟ باہر کے لوگ نہیں آتے، بقایا سیکٹروں کے لوگ تو آتے تھے جی۔ کتنا کوئی نقصان ہوا آپ کو اس سے؟ یارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اچھا، آپ کیا جھوٹ بولے، بس نقصان یہ نقصان ہے جو بھائی اپنا کاروبار کر رہے، مطلب پہلے 10,000 کا سیل ہو رہا تھا، اس ٹائم جو ہے نا 5,000 ہوا، اتنا ہی ہوا، بقایا ایسا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ خوش ہیں، آپ کی دیہڑی لگتی رہی سے؟ الحمدللہ، بس جو نصیب میں ہے وہ دیتے اللہ۔ چلیں، اللہ پاک آپ کو نصیب کرے۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں؟ کہاں سے ہیں آپ؟ میں تو مانسیرا ہوگی سے ہوں۔ یہ بتائیں کہ یہ اسلام آباد میں تھے یہ احتجاج جب ہوا ہاں جی تو اسلام آباد کے راستے بند تھے، تمام داخلی راستے بند تھے، بالکل، یہ مارکیٹیں بھی بند تھی اسی طرح؟ تو سب کچھ بند تھا، لوگ جو ہے سبزی نہیں مل رہی تھی، اب کیا مارکیٹیں بند تھی۔ اچھا، 2 دن جو ہے 3 دن لوگ جو ہے ان کو سبزی بھی تازہ سبزی نہیں مل رہی تھی، سڑکیں بند تھی، ادھر ادھر جانے کا جو ہے پروگرام نہیں تھا۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر تو 72 ہوگی۔ 72 سال کے آپ ہاں ہیں، جی، آپ نے اس پاکستان کو پھلتے پھولتے دیکھا ہے۔ بالکل جی، یہ بتائیں کہ اسلام آباد کو بھی پلتے پھولتے دیکھا۔ میں نے انٹر اور BA یہاں سے کیا تھا، فیڈرل گورنمنٹ کالج نمبر 1 سے۔ تو یہ بتائیں سر کہ یہ جو ابھی جو موجودہ صورتحال ہے جی، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ بالکل غلط ہے، اور جب تک یہ حکومت کا رویہ اس طرح ہوگا تو یہ ملک غرق ہو جائے گا۔ اچھا، ہاں، اور یہ جو احتجاج ہوا، احتجاج کے باعث راستے بند ہو گئے، تو آپ کیا حکومت کو پیغام دینا چاہیں گے؟ حکومت نے زیادتی کی، ظلم کیا ہے، احتجاج ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے، اور اس کے لیے وہ جو ہے آئے تھے عمران خان کی پارٹی والے، ان کو جو ہے اوپن جو ہے راستہ دینا تھا۔ جو کنٹینر انہوں نے لگائے تھے، راستے بند کیے، وہ تو انہوں نے جو ہے پھر بھی کھول دیے۔ ڈی چوک انہوں نے کہا تھا کہ ہم ڈی چوک پہنچیں گے، تو وہاں پہنچ بھی گئے۔ کیا کرتے اگر 2 دن 3 دن وہ وہاں ٹھہرتے تو کیا ہوتا، لیکن خواہ حکومت نے جو ہے زیادتی کی۔ اور یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں احتجاج تھا، 2 روز بند، 4 روز اسلام آباد بند رہا، جی جی تو مارکیٹیں بھی بند تھیں، جی جی تو اب کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لوگوں کو؟ سر جی، اسلام آباد تو ہر روز یہ بند کر دیتے ہیں، بہت زیادہ زیادتی کرتے ہیں ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ ہم کاروباری لوگ ہیں، ہمارے ساتھ انہوں نے بہت ظلم کیا، ہر روز اسلام آباد بند کرتے ہیں۔ مطلب ہمارا ایک پیشنٹ تھا، وہ گردوں کا پیشنٹ تھا،
तो हमारा सरगोजे से भी तल्लक है। अभी भी हमारा पेशेंट जो है ना सीरियस हालत में है, क्योंकि ये जो 4-5 दिन बंद रहा है ना, उस वजह से हमारा पेशेंट जो है ना ट्रीटमेंट की वजह से बहुत लेट हो गया, जिस लेट की वजह से हमारा पेशेंट जो है बहुत सीरियस है। ठीक है, तो किन और ये तो इतनी बड़ी मुश्किल का आप इजहार कर रहे हैं कि हॉस्पिटल्स की वजह, हॉस्पिटल में बंदे पहुंच नहीं सकते होंगे, डॉक्टर्स नहीं पहुंच सकते होंगे, ये तो एक बड़ा एक अफसोस है। क्या पैगाम देंगे आप हुकूमत को और उन पार्टियों को जो एहतजाज करती हैं? हम तमाम पार्टियों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कम अज़ कम शहरों को ना बंद करें। ठीक है, हमें सिर्फ जीने का हक़ दे दें। हम अपनी मुश्किल से रोटी कमा रहे हैं, वो हमें खाने का हक़ सिर्फ दे दें। ठीक है, बेशक शहरों को खुला रखें, बाकी हमारी कोई इनसे इल्तमास नहीं है, हम अपनी औखी सौखी रोटी खा लेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक बुज़ुर्ग शहरी हैं, कारोबार कर रहे हैं, घड़ियों का वो काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। कितनी उम्र हो गई आपकी? उम्र 65-70 हो गई। 70 हो गई है। हाँ, क्या काम करते हैं? ये मैं घड़ियाँ बनाता हूँ। अच्छा, ये बताएं अंकल कि जो एहतजाज हुआ 4 रोज़ बाद भी बंद रहा, जी जी। मार्केटें भी रास्ते बंदिश की वजह से बंद रहीं, क्या कहेंगे आप कि मतलब कितना नुकसान हुआ, क्या मुश्किलात हुई? नुकसान तो बहुत हुआ, हर किसी का हुआ, हमारा भी हुआ और दुकान वालों का भी हुआ। आपका ये चल रहा था? नहीं, बंद कर दिया था ना हमने। अच्छा, दुकान बताएंगे कितनी दिन को कमा लेते हैं आप, कितनी दिहाड़ी कमा लेते हैं? यही 1000-1200। तो इसका मतलब है कि आप 4 दिन आपको वो दिहाड़ी से आप महरूम रहे। तो ये बताएं कि आपकी 70 साल ज़िंदगी में जी। इस वक्त मुल्की हालात हैं, हाँ, कैसे हैं वो? अब मैंने पहली दफ़ा देखा है ऐसा। अच्छा, पहले तो ठीक था, अमन था। अच्छा, तो अब तो निज़ाम ज़िंदगी बहाल हो गया इस्लामाबाद में एहतजाज के बाद। हाँ, अब ठीक है, काम शाम चल रहा है, मार्केटें खुल गई हैं, दुकानें शुकानें। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को और उन पार्टियों को जो एहतजाज कर रही हैं? मैंने कहा कि एहतजाज ना करें, आराम से 5 साल गुजारने दो, तो उसके बाद बारी आएगी। ज़बरदस्ती तो कोई नहीं करने देता ना, कि मैं कहूँ कि मैं आ गया हूँ, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, ये बुरी बात है। ये बताएं कि जो 4 रोज़ कंटेनर्स लगा के जो रास्ते बंद किए गए थे, वो उसकी वजह से मार्केटें भी बंद रहीं, तो कितना के नुकसान हुआ आप लोगों को? नुकसान तो हुआ है ना, पूरा मरकज़ पूरा मुल्क बनता ना, सिर्फ इस्लामाबाद तो नहीं बनता, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, हर पूरा। हमारा तो नुकसान यही नुकसान है कि हम दिन को कमाते हैं और रात को खाते हैं, बस। नुकसान तो लाजमी बात है, होगा ना। तो क्या अभी हालात बेहतर हो गए हैं? क्या बेहतर होगा, कोई नया निज़ाम उठा दिए, कोई तरक्की कर दिए, हमें कुछ दिए, क्या हो गया, क्या तरक्की? क्या पैगाम देंगे हुकूमत को या उन पार्टियों को जो एहतजाज करती हैं इस्लामाबाद में आकर? क्या एहतजाज हर मुसलमान का हक़ है, हर पार्टी का हक़ है, सिर्फ पीटीआई का हक़ नहीं है, हर मुसलमान का हक़ है। हर ये कानून है, ये आइन ने ये हक़ दिए है कि हर मुसलमान निकल आ सकते हैं अपने हक़ के लिए। मगर ये इसराइलों में जो जुल्म हुए है ना, ये न कभी इसराइलों ने किए, कभी हिंदू ने नहीं किए है ना, कश्मीरियों के। हाँ, हुकूमत ने ये जो बर्बरियत की है ना, ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा 40 साल उम्र है, हिंदू ने कभी कश्मीर भी इस तरह बर्बरियत नहीं की है। आप क्या कहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट को कोई भी अगर काम करना हो ना, तो गवर्नमेंट को चाहिए खुद करे वो काम। ये अगर जैसे ये करवा रहे हैं और किसी के कहने पे कर रहे हैं, इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है, पूरी दुनिया में गलत मैसेज जा रहा है। आपका इन्वेस्टर जो मुल्क में आना चाहता है इन्वेस्ट करने के लिए, वो आपके मुल्क से, आपका अपना पाकिस्तानी इन्वेस्टर भाग रहा है, अच्छा इन्वेस्टर जो पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है वो बाहर मुल्क में जा रहा है। बराए मेहरबानी देखिए, अगर एहतजाज एक पार्टी कर रही है, आप उसके लिए, आपके पास लाठी है, आपके पास मतलब है शेल है, आपके पास फाइल, आप बर्फ़ का ठंडा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंड थी उन लोगों को उठाने के लिए, ताकि वो लोग वो जगह छोड़ के चले जाते। एहतजाज मुज़ाकरात का हाल होता है। क्या मौलाना ने एहतजाज नहीं किया? क्या किसी और पार्टी? मैं खुद मुस्लिम लीग नून से, मैं हुकूमत को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी एहतजाज करे, आज उन्होंने एहतजाज किया, कल आप पे भी ये वक्त आ सकते हैं, आप भी एहतजाज करेंगे। बराए मेहरबानी मुज़ाकरात के ज़रिए, ये जमहूरियत है, ये अमरीत नहीं है, इसमें आप अवाम की, ये अवाम निकलेगी अपने हक़ के लिए। आप बजाय मेहरबानी अवाम की हक़ सुने, हक़, और आपने अदालतें बंद कर दी, अदालतों में अवाम नहीं जा सकती और किसी जगह से इंसाफ नहीं मिल सकता। एहतजाज भी अवाम ना करे तो ये क्या करे? अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर एक इस्लामाबाद की बड़ी मार्केट के G10 के अंजुमन ताजरान के सदर हैं। इनसे बात करेंगे। 4 रोज़
بند رہا اسلام آباد، جس کی وجہ سے عوام تو مشکلات کا شکار ہوئی، لیکن جو ٹریڈرز ہیں، جو تاجر ہیں، جو چھوٹا تاجر یا بڑا تاجر، اس پر بھی کافی اثر انداز ہوا. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارا وقف لینے کے لیے آئے اور ہماری آواز حکومت حکام بالا تک پہنچائی. صورتحال یہ ہے کہ جب 4 دن یہ اسلام آباد بند ہوا، اس کی وجہ سے یہ صرف 4 دن نہیں ہے، 4 دن 2 دن اس بندگی سے پہلے ہے اور آج تیسرا دن ہے. کا عالم ہے، لوگ گھبرائے ہوئے ہیں، گھروں سے نکل نہیں رہے ہیں، کاروباری طبقہ سخت پریشان ہے. ہم چھوٹے تاجر کی نمائندگی کرتے ہیں، میں G10 مرکز کا صدر ہوں. یہاں مارکیٹ کی یہ صورتحال ہے کہ آج آپ مارکیٹ میں گھومیں آپ کو کوئی گاہک نہیں نظر آئے گا. لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے. اسلام آباد کی تاجر برادری نے ہائی کورٹ سے بھی وہ کیا تھا، ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی تھی کہ اسلام آباد میں احتجاج پر پابندی لگائی جائے. ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ اسلام آباد شہر کے اندر نہیں احتجاج ہوگا اور کوئی اسلام آباد شہر کو سیل نہیں کیا جائے گا، بند نہیں کیا جائے گا. تو اس کے باوجود اسلام آباد شہر سارا بند ہوا. اسلام آباد کی مارکیٹس کو بند کروایا گیا. آپریشن کے دوران جب اس کو احتجاج کو ختم کروانے کے لیے آپریشن کیا گیا تو اسلام آباد شہر کی ساری بڑی مارکیٹس جتنی ہیں سب کو بند کروایا گیا. یہ کروڑوں روپے کا اسلام آباد شہر کے تاجروں کا نقصان ہوا ہے. یہ ہر دفعہ ہوتا ہے. ہماری حکومت سے یہ درخواست ہے اور ہائی کورٹ سے بھی ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے. جو لوگ، اگر عدالت نے حکم دیا ہے کہ اسلام آباد شہر کے اندر نہیں احتجاج ہوگا تو انہوں نے عدالت کی توہین کی ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. شہر کے تاجر پہلے ٹیکسز کی وجہ سے پریشان ہیں، مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں، کرایوں میں اضافوں کی وجہ سے پریشان ہیں. اسلام آباد میں رینٹ کنٹرول ایکٹ نہ ہونے کی وجہ سے بے تحاشا کرائے ہیں، اس کی وجہ سے پریشان ہیں. ایک دن کا جو لاس ہوتا ہے یہ 1 سال میں بھی جا کے کور نہیں ہوتا. تو یہاں تو ہر 2 مہینے کے بعد احتجاج ہوتا ہے اور 10 دن کے لیے بند ہوتا ہے اور 10 دن کے بعد جب کاروبار پھر اپنی سمت پہ آتا ہے پھر احتجاج کی کال ہوتی ہے اور پھر احتجاج ہو جاتا ہے. اسلام آباد کے تاجر تو ہم تو روز روز کے اس احتجاج سے تنگ ہیں. پھر دوسری صورتحال یہ ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی جماعت احتجاج کی کال دیتی ہے، پولیس نے نفری جو ان کو جو ٹارگٹ دیا ہوتا ہے ان کے پرسن پورے کرنے کے لیے شہر کی مارکیٹوں سے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ پورے کرتے ہیں کہ ہم نے اتنے بندے اٹھا لیے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہوتا. میرا بھی پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق ہے. میں اپنی جماعت سے بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر احتجاج کو کوئی جماعت احتجاج کرتی ہے یا کوئی وہ یہاں آتی ہے اس کو روکنا ہے تو اس کے لیے جو لوگ اس جماعت سے وابستہ ہوں ان کے خلاف کارروائی کی جائے، نہ کہ عام شہریوں کو پکڑ دکڑ کر کے ہراساں کیا جائے اور شہر میں جو حالات ہیں ان کو خراب کیا. اچھا اخلاق صاحب، آپ نے کہا کہ فائنینشلی تو تاجر متاثر ہو رہا ہے، لیکن جب احتجاج کیے جاتے ہیں، جب انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے ریڈز کیے جاتے ہیں تو عام تاجر کو وہ اٹھا کے اپنی وہ جو کاؤنٹنگ، وہ گنتی وہ پوری کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ نے انتظامیہ سے، پولیس کے جو حکام بالا ہیں ان سے کبھی بطور صدر، بطور ایک ٹریڈ یونینسٹ آپ نے رابطہ نہیں کیا؟ سر، یہ اس احتجاج میں بھی ہمارے یہاں G10 مرکز سے 11-12 تاجر ایسے جن کا مسلم لیگ نون سے تعلق تھا. ہمارے ایک شعیب بٹ صاحب ہیں، وہ نون لیگ کے وائس چیئرمین کا الیکشن لڑ رہے تھے. یہاں ایک خاتون ہے وہ لیڈی کونسل کا الیکشن لڑ رہی تھی، ان کو بھی تھانے میں لے جا کے بند کر دیا گیا. یہاں سے جن تاجروں کو لے کے گئے نون لیگ سے ان کا کوئی، نون لیگ سے ان کی وابستگی تھی، PTI سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہاں جا کے مار داڑ کی گئی، لوگوں کو بے عزت کیا گیا. میرے شور کرنے پر، میرے احتجاج کرنے پر ان کو چھوڑ دیا. لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے. اس طرح کی صورتحال کی وجہ سے ملکی حالات خراب ہوتے ہیں، لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں. یہ چیزیں
ان کو آئندہ کے بعد ان کا سدباب کیا جائے۔ ناظرین، اسلام آباد کے کاروباری طبقے کی، ٹریڈرز کی، اور جو روز مرہ کا جو ریڑی بان ہے، جو ٹریڈر ہے، اس حوالے سے ہم نے آج ان کی مشکلات جانی اور کوشش کی کہ آپ کے سامنے پیش کریں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کی ایگزیکٹو ممبر ہیں شمائلہ صدیقی۔ ہم ان سے بھی بات کریں گے، ان سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو ٹریڈرز ہیں، جو تاجر ہیں، بالخصوص جو چھوٹا تاجر ہے، جب احتجاج ہوتے ہیں، اسلام آباد بند ہو جاتا ہے، تو کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے تدارک کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اسلام آباد چیمبر آف کامرس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ تاجروں کو اور ٹریڈرز کو اور جتنی بھی ہماری انڈسٹری سائٹ کو پروٹیکٹ کرنا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا۔ ڈیفینیٹلی جب اس طرح کے احتجاج ہوتے ہیں تو ملک پہ، پورے ملک پہ اثر پڑتا ہے، اسپیشلی اسلام آباد کیونکہ کیپٹل ہے، یہاں سے سارے شہر کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بہت برا اثر پڑتا ہے۔ اور چھوٹے تاجر، اسپیشلی جو ریڈی والا ہے بیچارہ، جو تھوڑے کام کر رہے ہیں، سبزی والے ہیں، آڑتی ہیں، یا جو بھی جس بھی شعبے سے منسلک ہیں، ان سب کا کاروبار بہت زیادہ متاثر ہوا ہے۔ یہ جو ہمارا کنٹینر ایک فضا بن چکی ہے اسلام آباد کی پچھلے 1.5 سال سے، جو کہ بہت ہی اریٹیٹنگ ہے، نہ صرف تاجر بلکہ عام شہری بھی اس سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ مطلب اس کلچر کو اب ختم ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس سے تو ملک پہ بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ میڈم یہ بتائیں کہ اس کے تدارک کے لیے، اس کے سدباب کے لیے ہماری انجمن تاجران سے بھی بات ہوئی، مختلف یونینوں سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ہائی کورٹ میں بھی گئے ہیں، اس حوالے سے ہم نے ریٹ بھی دائر کی ہے کہ اسلام آباد کو بالخصوص جب کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کے تدارک کے لیے، پروٹیسٹ روکنے کے لیے کوئی احکامات جاری ہونے چاہیے، تو اس حوالے سے چیمبر آف کامرس کی کیا پالیسیز ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ شہر بند نہ ہو، کوئی جگہ آپ مختص کر دیں جہاں پہ احتجاج والے لوگ آ کے بیٹھیں، چاہے وہ یہ ہر دور میں چلتا رہے گا، چاہے ایک گورنمنٹ آئے تو اپوزیشن اسی طرح احتجاج کرتی ہے اور وہ آتی ہے، چلیں احتجاج ان کا آئینی حق ہے وہ جیسا، لیکن اس آئینی حق میں آپ معیشت کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر سیاسی استحکام بہت زیادہ ضروری ہے، جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، جب تک ہم معاشی استحکام کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ تو چیمبر اور تمام تجارتی جو کونسلز ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر ہمیشہ کوشش یہ کرتی ہیں کہ شہر میں استحکام رہے اور کاروباری فضا جو ہے وہ قائم رہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں انڈیکس ہمارا کہاں پہلی دفعہ ہو رہا تھا کہ 1 لاکھ کو ٹچ کرا تھا اور کس طرح ایک دن کے اندر ڈراپ کیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ دوبارہ 1 لاکھ کو پہلی دفعہ کراس کر گیا ہے، بٹ اسٹل یہ کلچر بالکل پروموٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو میڈم آخر میں کوئی پیغام حکام بالا ہیں جو ذمہ داران ہیں ان کے لیے آپ کی جانب سے؟ میرے خیال سے دونوں طرف سے نرمی کا رویہ رکھنا چاہیے، عوام اور حکومت کے درمیان ایک برج، ایک ایسا تھنک ٹینک بننا چاہیے جو برج قائم کرے، کیونکہ جو دونوں طرف ایک بالکل ہی اپوزٹ سائڈ پہ چل پڑیں، اس کو جوڑنے کی بہت ضرورت ہے اور عوام کا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ ناظرین، آپ نے سنا شمائلہ صدیقی جو کہ ایگزیکٹو ممبر ہیں چیمبر آف کامرس اسلام آباد کی، کہ حکومت کا اور عوام کے درمیان میں جو برج ہے اور جو جتنے بھی معاملات ہیں ان کو افہام و تفہیم کے ساتھ حل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے کوشش کی کہ آج تاجروں کی بھی بات کریں اور تاجروں کی جو یونینز ہیں، جو ان کے ذمہ داران ہیں، ان کی بھی بات آپ تک پہنچائی۔ آج ہم موجود ہیں جڑواں شہروں کے سنگم یعنی فیض آباد کے مقام پر۔ دونوں شہروں کے شہریوں کی رائے جانیں گے کہ جب بھی کسی سیاسی جماعت کی جانب سے احتجاج کی کال ہو، یا پھر کسی مذہبی جماعت کی جانب سے، یا پھر کرنا ہو کسی اہم شخصیت نے دورہ اسلام آباد کا، تو دونوں شہروں کی زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ راولپنڈی سے اسلام آباد نہیں جا سکتے، اسلام آباد سے راولپنڈی نہیں آ سکتے، میٹرو سروس بند کر دی جاتی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ بند کر دی جاتی ہے، آپ اپنی گاڑی میں بھی سفر نہیں کر سکتے کیونکہ مختلف شاہراہیں کنٹینر رکھ کر بند کر دی جاتی ہیں، جگہ جگہ سیکورٹی تعینات کر دی جاتی ہے۔ تو ہسپتال لے کر جانا ہو کسی مریض کو تو ایمبولینس گزرنے تک کا راستہ نہیں ہوتا، کہیں بائک گزرتی ہے، کہیں راستوں سے، وہ بھی بڑی مشکل سے آپ اسلام آباد سے راولپنڈی پہنچ سکتے ہیں، راولپنڈی سے اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح کاروباری زندگی پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے یہ تمام تر معاملات، کہ ایک ریڑی والا جو صبح کو کماتا ہے، شام کو وہ کھاتا ہے، وہ کیا کرتا ہے ان دنوں میں، ایک ٹیکسی چلانے والا کیا کرتا ہے، ایک رکشہ چلانے والا کیا کرتا ہے۔ بڑے کاروبار والوں کی بھی زندگی تو متاثر ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں وہ پھر بھی ریلیکس ہوتے ہیں کیونکہ ان کو پھر بھی تھوڑا سا آسرا ہوتا ہے۔ لیکن ایک عام پاکستانی جو چھوٹا سا کاروبار ہے، ایک مزدور ہے، وہ کتنا اثر انداز ہوتا ہے اس سے، تو جانیں گے۔ اسلام آباد سے بھی شہریوں سے گفتگو کریں گے اور راولپنڈی کے شہریوں سے بھی گفتگو کریں گے، وہ کیا جواب دیتے ہیں، حکومت سے کیا اپیل کرتے ہیں کہ کیا سیکورٹی کے نام پر شہر بند کر دینا مسائل کا حل ہے یا نہیں۔ آج ہم جڑواں شہروں کی شہریوں سے جان رہے ہیں کہ احتجاج ہوتا ہے، یہ جو بھی مسئلہ مسائل ہوتے ہیں، یہاں پر راستے بند کر دیے جاتے ہیں، کاروباری مراکز بند ہو جاتے ہیں، ایک ریڑی بان جس کی روزانہ کی اس مزدوری پر جو ہے گھر چلتا ہے، ان سے پوچھتے ہیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سر یہ بتائیں کہ جب کاروبار بند ہوتے ہیں احتجاج کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، تو کیا اثر پڑتا ہے آپ کے کاروبار پر؟ جی انشاءاللہ جو یہ اثر راستے بند ہوتے ہیں ہمارا کاروبار کو بہت اثر پڑتا ہے۔
शाम को जो होते हैं ना किन करो वो दिहाड़ी भी नहीं पूरा होता है हमारा। सारा दिन फिर के डके लगा के ना जो 10-20 रुपए चीज़ में होते हैं वो लोग क्या तूफ़ खान आप लोग ज़ुल्म कर रहे हैं, वो अपने पैसे भी हमको नहीं पूरा करता है। और सारा दिन फिर के लोग कहते हैं खान भाई आप ज़ुल्म कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इनको पता नहीं है मंडी का हालात बहुत महंगाई है, हर कुछ जो है 800-900 रुपये चीज़ मिलता है। घर का चूल्हा फिर कैसे चलता है उन दिनों में? बस इनका इस वक्त जो है ना घर का चूल्हा बहुत मुश्किल है आजकल, लेकिन इंतज़ाम में हालात चला लेते हैं। चलो इसके ऊपर शुक्र है, शाम को जो थोड़े कुछ रोटी मिल जाता है बच्चों के लिए, लेकिन महंगाई बहुत बड़ा है। गरीब आदमी को वस जो है ना बड़ा वस है, उसके बाहर से वस है। हुकूमत से क्या अपील करेंगे जो ये रास्ते और ये कारोबार बंद कर दिए जाते हैं? हम कहते हैं कि ये रास्ते खुल जाए, गरीब का कारोबार रास्ते निज़ाम चल जाए, रात को बच्चों के लिए कुछ कमाए, ये रास्ते बिल्कुल ना बंद हो जाए। गरीब आदमी बहुत परेशान में पड़ा हुआ है बाजी। यानी कि आपकी ज़िंदगी बड़ी ख़राब हो जाती है? ज़िंदगी बड़ा ख़राब है आजकल, बहुत मुश्किल है बाजी। जो कारोबार करते हैं डेयरी, कितना कमा लेते हैं इस रेडी से? कभी हम 800 कमाते हैं, कभी 1000 कमाते हैं, कभी 1200 रुपये। वो घर का खर्चा भी नहीं पूरा होता है, कभी बिल होता है, कभी किराया होता है, ये भी बड़ा बहुत मुश्किल से हम पूरा कर लेते हैं। अंकल ये बताएं कि जब सियासी जमातें एहतजाज करती हैं, ये कोई भी वजह होती है, जुड़वा शहरों के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, कारोबार बंद कर दिए जाते हैं, तो आपके कारोबार पर कितना असर पड़ता है? ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है? ज़िंदगी भी मुश्किल हो जाती है, रोडे भी बंद होते हैं। क्रिकेट की वजह से सबसे प्रॉब्लम है इधर। 15-20 दिन इधर दुकानें बंद रहते, ये सबसे बड़ा वजह क्रिकेट है। पूरा दुकान 400 दुकानें बंद होते, सिर्फ एहतजाज नहीं, क्रिकेट भी बड़ा प्रॉब्लम है। तो क्या हुकूमत से अपील करेंगे कि इस बात का कोई हल निकाला जाए कि रास्ते बंद करना कोई हल नहीं है? रास्ते बंद करना भी कोई हल नहीं है, और ये जो मैच के हवाले से ये इधर क्रिकेट हो रहे हैं ना, ये हुकूमत को चाहिए कि उधर अपना सिक्योरिटी लगा दे, इधर रोडे बंद नहीं करो। अपनी सिक्योरिटी का अपना काम करे, रास्ते बंद ना करे। रास्ते बंद न करे, ये बहुत मुश्किल है। इधर लोग 1-1 लाख रुपए किराया देते हैं, यहाँ हमें जेब से देना पड़ते है बाद में। नुकसान है, वाकई नुकसान है। इधर से कारोबार भी बंद है, और जब दुकान बंद होते क्रिकेट में तो हमें जेब से देना पड़ते, बहुत नुकसान है। बिल्कुल, रावलपिंडी के शहरी, इनका कहना है कि सिर्फ एहतजाज से ही हमारी मुश्किलात नहीं बढ़ती, बल्कि जब मैचेस होते हैं, स्टेडियम रोड है, यहाँ पर भी कारोबार बंद कर दिए जाते हैं, ट्रैफिक बंद कर दी जाती है। हुकूमत से ये अपील करते हुए नजर आए हैं कि अपनी सिक्योरिटी अपने काम करें, रास्ते बंद कर देना, कारोबार बंद करा देना ये कोई हल नहीं है। कोई मौसर हल, हिकमत अमली होनी चाहिए हुकूमत के पास, वरना हमारी ज़िंदगी जो है ना सिर्फ एहतजाज के दौरान बल्कि मैचेस के दौरान भी मुश्किल हो जाती है। जी भाई शकरकंदी की रेडी लगाई हुई है और सफ़र पर गामजन है। इनसे पूछते हैं कि जब रास्ते बंद होते हैं, सर ये बताइए कि जब एहतजाज होता है, ये कोई भी मसला होता है, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, कारोबार बंद कर दिए जाते हैं, तो आपकी रेडी पर कितना असर पड़ता है? बहुत नुकसान होता है। पता क्या है, ये हुकूमत को चाहिए कि इसकी कोई अपोजिट कोई जगह दे, ठीक है। और ये है कि तकरीबन 2 या 3 लाख बेरोज़गार हो जाते हैं जब ये रोड ये सिलसिले बंद होता है, धरना वगैरह होता है, ठीक है। हुकूमत को चाहिए कि ये ना इनको जगह दे, और ये ना मज़दूर तबके को रिलीफ मिले। वैसे रेडी से कितना कमाते हैं? जब ऐसा मौका होता तो फिर रेडी बिल्कुल बंद हो जाती, कोई आपकी इनकम नहीं होती? बस ये है कि गुजारा बस होता है, जब रास्ते रोड ब्लॉक हो जाते हैं, फिर रास्ता कहीं भी नहीं होता जाने को। एक जगह पर खड़े होकर जो काम करना होता है वो मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, इनकी आपने गुफ्तगू सुनी कि हमारा काम है, जाहिर है कि जगह जगह गली में जाकर बेचते हैं। जब रास्ते बंद होते हैं तो हम कहाँ पर जाएं? ये टैक्सी वाले भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं सर जब रास्ते बंद होते हैं, आपको सवारी नहीं मिलती, जुड़वा शहरों में आप सफ़र नहीं कर सकते, ज़िंदगी मफलूज हो जाती है, तो कितनी मुश्किल होती है? बड़ी मुश्किल होती है, रास्ते सारे बंद होते हैं ना, खड़े होते हैं ना, ये तो कारोबार पर आपके कितना असर पड़ता है? काफ़ी असर पड़ता है, कारोबार तो ख़त्म हो जाते हैं बिल्कुल, इनके लोग निकलते ही नहीं है, निकलती ही नहीं है, सवारी मिलता नहीं है उसमें। हुकूमत से क्या कहेंगे कि इसका कोई हल निकाले? हाल क्या निकाले, सियासी लोग हैं ना, ये क्या निकाले इस पे, हाल तो कोई निकाले, सियासी लोग हैं जो ना ये। आपको लगता है रास्ते बंद कर देना कोई हल है? नहीं, ये तो कोई हाल नहीं है, रास्ते हाल है नहीं ये रास्ते बंद करने। जिस वक्त एक दर्जी की दुकान पर मौजूद है जहां वो कपड़ा भी सेल कर रहे हैं और साथ साथ कपड़े भी काट रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि जुड़वा शहरों की ज़िंदगी जो है कितनी मुश्किल हो जाती है जब रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, कारोबार पर कितना असर पड़ता है सर? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। यहाँ तो ये है कि मैच भी वगैरह भी होते हैं, ये नहीं है कि मैच होने से पहले टीम आए 1 घंटा पहले बंद कर दें और जब जाएं
तो 1 घंटा पहले बंद कर दें। ये तो ऐसे करते हैं 24-24 घंटे बंद कर देते हैं जी। जब टीम जब तक खेलती नहीं है, जब तक आती और जाती नहीं, उस वक्त तक रास्ते भी नहीं खुलते, चाहे वो 10 दिन हो, 12 दिन हो, 15 दिन हो, 18 दिन हो, कोई रिलीफ देते ही नहीं। ना गवर्नमेंट है, ना कुछ रिलीफ है, किसी के साथ कोई तावन करने का इनको। इसके अलावा भी सर कोई भी सियासी जमात या कोई मजहबी जमात एहतजाज करती है, तब भी जुड़वा शहरों की ज़िंदगी पर असरअंदाज होता है। बहुत ज़्यादा होता है जी, इसलिए कारोबार भी ख़राब हो जाते हैं, कस्टमर भी तंग होता है और मज़ीद जो है ना मुश्किलात होती हैं जी। उन दिनों में ज़ाहिर है जब आपका ज़रिया माश ये हो, ज़रिया रोज़गार ये हो, तो ज़िंदगी की गाड़ी चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जी, बेइंतहा मुश्किल हो जाता है, जितना भी बंदा के। बाकी ये निज़ाम बस मुश्किल से चल रहा है, बाकी आगे देखते हैं होता है क्या। जब तक कारोबार अच्छा नहीं होगा, कुछ कानून साजी नहीं होगी या कुछ रिलीव नहीं किसी को दिया जाएगा, उस वक्त तक कुछ। हुकूमत से कोई अपील करेंगे? हुकूमत से अपील करेंगे भी तो कौन सुनेगा। जी, हुकूमत से भी मायूस नज़र आते हैं। हुकूमत से भी कोई अपील नहीं की कि हमारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं और कारोबार तबाह हो जाता है, ज़िंदगी की गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लोगों की गुफ्तगू सुनकर अंदाज़ा हो रहा है कि जब रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, हुकूमत को लगता है कि हमने कोई बहुत अच्छा हल निकाल लिया है, सिक्योरिटी के पेश नज़र ये तमाम चीज़ें की गई हैं, लेकिन आम लोगों की ज़िंदगी पर, आम इंसान की ज़िंदगी पर, जिनके बड़े कारोबार नहीं है, छोटे कारोबार है, जिन्होंने रोज़ कमाना है और शाम को खाना, उनकी ज़िंदगी पर भरपूर असर पड़ता है और वह हुकूमत को यही दुहाई देते नज़र आ रहे हैं कोई और हल निकाला जाए, रास्ते बंद कर देना, मफलूज कर देना ज़िंदगी कोई हल नहीं है। जी, यहाँ भी एक चिप्स का जो है एक ठेला सा लगाया हुआ है, जहाँ पर वो ज़ाहिर है कमाते हैं, रोज़ाना इसे खाते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि जब रास्ते बंद होते हैं और सब कुछ ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा होता, हू का आलम होता है रावलपिंडी इस्लामाबाद में, तो इनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है। सर, कारोबार पर कितना असर पड़ता है जब रास्ते बंद होते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि देखें इस वक्त माली हालात तो पाकिस्तान के मुल्क के बहुत ही मुश्किल हैं, जहाँ महंगाई का दौर है और हर गरीब और अमीर यकसा चल रहा है इस वक्त। दुश्वारी दोनों के लिए है, चाहे अमीर के लिए हो, गरीब के लिए हो। तो मैं ये चाहूँगा कि मुल्क के हालात की बिना पर बेहतर तरीका अपनाया जाए ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। कोई भी ऐसी राह ना अपनाई जाए जिससे लोगों के लिए दुश्वारी पैदा हो, जैसे रास्तों का बंद होना है, महंगाई का ज़्यादा होना है, बिजली की तंगी होना है और महंगाई का ज़्यादा बढ़ना है। तो ऐसी कोई अच्छी तदबीर अपनाई जाए जिससे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। जी, एक फ्रूट की रेडी नज़र आ रही है, उन भाई से जाके गुफ्तगू करेंगे कि जब रास्ते बंद होते हैं, तमाम रुकावटें होती हैं, फ्रूट महंगा हो जाता है, सब्ज़ी लाना दुश्वार हो जाता है, तो जो मार्केट में आता है तो वो ग्राहक बड़ी मुश्किल से ख़रीदता है कि बड़ा महंगा है, लेकिन मंडी में भी ख़राब हो रहा होता है। तो पूछते हैं क्या सूरत हाल होती है जब सर रास्ते बंद हो जाते हैं, फ्रूट की रेडी आप लगाते हैं, तो कितना असरअंदाज होता है कारोबार? ये काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है इसमें, क्योंकि रास्ते बंद होते, माल शार्ट होते, तो फिर ज़ाहिर बंद हो जाए, वो महंगा हो जाता है फिर जो है, इसलिए जो काफ़ी आवाम के लिए मुश्किलात पड़ जाते हैं और जो है हर चीज़ महंगा होता है। ये तो आवाम की कोई कसूर तो नहीं है, क्योंकि बात ये होती है चलो एहतजाज हर मुल्कों में होते हैं, हर चीज़ काम होते हैं, ये क्यों बात है कि अभी उसके लिए जो है आवाम के लिए कम से कम रसद में छोड़ना चाहिए ताकि कारोबारी जो है इंतज़ाम, क्योंकि आजकल तो महंगाई देखो, बिल जो है हर चीज़ के लिए तो खर्चे कौन बर्दाश्त कर सकते हैं। आपको लगता है कि रास्ते बंद कर देना कोई हल होता है? हाल यही होते है कि बस चलो अभी जहाँ भी एहतजाज होती है वहाँ पे अपने स्कूटी मजबूत करे, चलो और उनका अपना जो है सरकारी इदारा के मतलब जो काम होते हैं उसको वहाँ भी काबू रखें, क्योंकि ये होते को 100 काम पड़ जाते। तो आप कहते हैं कि रास्ते बंद कर देने चाहिए एहतजाज में? नहीं, इससे तो बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बात ये होते पूरी दुनिया तो नहीं उठ के जाते, हर बंदे मजबूर होते हैं, हर बंदे के खर्चे होते हैं, 100 मसाइल होते हैं। ये होना चाहिए ताकि मतलब कारोबार भी चलते रहे, चलो वो भी जो है मसाइल जो है ना वो भी चलते रहे। तो बात ये होती है चलो बातचीत के लिए वो मसले भी हल होना चाहिए। जी बिल्कुल भाई, कि आपने गुफ्तगू सुनी कि रास्ते नहीं बंद करने चाहिए, हुकूमत को कोई और हल निकालना चाहिए। हम कौन सा सारे एहतजाज में जा रहे होते हैं जो हुकूमत सबके रास्ते बंद कर देती है। हमने अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चलानी होती है, हम कारोबार करते हैं, मजदूरी करते हैं, घर में अगर कुछ कमा के लेके जाएंगे तो बच्चे खाएंगे, और शाम को अगर नहीं जाएंगे तो फिर खाली हाथ ही हम जाते हैं, क्योंकि कारोबार ही कोई नहीं होता। जब रास्ते बंद हो जाते हैं, ट्रैफिक की रवानी बंद हो जाती, तो रिक्शे कहाँ पर चलते हैं, और रिक्शा जो मजदूरी करके बेचारा शाम को अपना घर चलाते हैं, उससे पूछते हैं कि कितना कारोबार मुतासिर होता है जब रास्ते बंद कर देती है हुकूमत। बहुत मुश्किलात हमारे लिए होते हैं, यकीन जाने बहुत मुश्किलात होता है। क्या मुश्किल होती है? कितनी मजदूरी होती थी और जब रास्ते बंद होते हैं फिर वो नहीं होती? मजदूरी क्या मजदूरी होता है, उल्टा जेब से लग जाता है, पेट्रोल इतना लग जाता है, इतना मजदूरी इतना पेट्रोल लग जाता है, हम क्या करें ये बताओ। हुकूमत से क्या अपील करेंगे? रास्ते बंद कर देना एहतजाज के दौरान ये कोई हल है? हमारी हुकूमत है, हुकूमत किधर है? नाम को हुकूमत है, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है ना, वो तो सबको पता है। वज़ीर आज़म उसने क्या किए बता, क्या किए? कुछ किए? तो वज़ीर आज़म तो है ना, नाम का वज़ीर आज़म तो मैं भी हूँ, रिश्के वाला। कोई किसी का नहीं है, अपना खुद कमाएंगे खुद खाएंगे, कोई किसी को नहीं देते। तो
हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है आपको? कोई उम्मीद नहीं है, एक दिन छुट्टी करूँगा 10 दिन पीछे जाऊँगा। आप खुद सोचो हम क्या करें। एक बाबा जी नज़र आए हैं जिन्होंने रेडी लगाई हुई है, उनकी कमाने की उम्र नहीं है लेकिन शायद ना जाने क्या मजबूरी है, जो खुश्क मेवा जात की रेडी लगाई हुई है, इसमें मूंगफलियां भी हमें नज़र आ रही हैं। उनसे पूछते हैं कि जब से अंकल रास्ते बंद कर देते हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद के रेडी नहीं लगा सकते, सब कुछ बंद होता है, तो ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है? बहुत मुश्किल है, इतनी मुश्किल है कि कभी रास्ते बंद हो जाते हैं, कभी मैच हो जाते हैं इधर, कभी क्या मजबूरी होती है, किराए बिल भरने पड़ते हैं। कमों पे 1 लाख रुपए से भी ज़्यादा हमारा ख़र्चा होता है। इस रेडी से गुजारा मुश्किल से ही होता है, क्या करें अभी। हुकूमत से क्या कहेंगे? हुकूमत से बस यही है कि वो हमारे पर कोई रहम करें बस, और क्या। बस गरीब पे जो है ना जुल्म हो रहा है, गरीब जिधर भी है ना जुल्म हो रहा है उस पर। इसलिए वो हुकूमत पर यही है कि उनसे अपील यही करते हैं कि बस हम पे कोई रहम करें, कि हमें कोई मजदूरी का तो कोई कम से कम कोई हक मिले, कोई ना कोई मसाइल बन जाए। बाबा जी बात करते करते थोड़े से जो है इमोशनल हो गए। उनका कहना है कि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है और हुकूमत से बड़े आजाना अंदाज में अपील भी कर रहे हैं कि रास्ते ना बंद किया करें, क्योंकि हम जो मजदूर लोग हैं सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं, तो ज़िंदगी को मफलूज कर देना कोई हल नहीं है। सर ये बताएं, जब इस्लामाबाद रावलपिंडी में एहतजाज होता है तो दोनों शहरों का राब्ता मुनक़ता कर दिया जाता है, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद के शहरियों की ज़िंदगी ज़्यादा मुश्किल होती है। आप इस्लामाबाद में कारोबार करते हैं तो कितना असरअंदाज होता है कारोबार, कितना माशियत पर असर पड़ रहा है? कारोबार क्या, कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कारोबार में तो बिल्कुल रहते ही नहीं है, दुकानें बंद हो जाती हैं, उल्टा खोले तो मजिस्ट्रेट आ जाती हैं। या तो फिर ये है ना कि हमारी दुकानों को किराया भी पे करें, वो एक दिन का हम 2-2 हज़ार रुपये किराया पे कर रहे हैं, वो कहाँ से हम पे करेंगे। उल्टा सामान महंगा मिलता है, फिर चीज़ें नहीं मिलती। आपको लगता है हुकूमत सिक्योरिटी के नाम पर शहरों को सील कर देती है, सिक्योरिटी के नाम पर शहरों को सील करना कोई हल है, ये इसका कोई और हल निकालना चाहिए? ये तो हुकूमत को बेहतर, उसके पास बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, वो बेहतर समझ सकते हैं ना कि इसके अलावा कोई और भी हल निकल सकता था। सील के अलावा भी बड़े मामला थे, लेकिन अब हमें इस चीज़ की समझ नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। हुकूमत से कोई अपील करेंगे? बस हुकूमत से ये अपील करें कि बामी रजामंदी में जो मसला है इसको हल करें, और ये रोज़ आए दिन ये कंटेनर लगा के बंद कर दिया जाता है, तो ये वहाँ में कहाँ जाएगी ये। क्या कहेंगे, जब एहतजाज होता है तो इस्लामाबाद में रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, कारोबार बंद कर दिए जाते हैं, कितनी ज़िंदगी मुतासिर होती है? बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, कारोबार तो होता ही नहीं है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि गाहक निकलता नहीं है बाहर, और इस वजह से जो है ना कारोबार बहुत डाउन हो जाता है। तो एहतजाज उनका हक है, करना चाहिए, लेकिन यह है कि कम से कम दुकानें तो खुलें। यानी कि उस दिन तो सारा इस्लामाबाद बंद था, तो खाने पीने की चाह हो गई, यानी कि बेकरी हो गई, तो नूर हो गई, और मेडिकल स्टोर ये तो खुलने चाहिए, लेकिन उस दिन ये भी बंद थे, सारे ही बंद थे, बहुत मुश्किलात थी। तो फिलहाल हुकूमत से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम इन चीज़ों पे तो ना लॉकडाउन करें ना, बाकी तो जो है रश जहाँ पे होती है वहाँ पे लॉकडाउन करें, लेकिन इन चीज़ों पे लॉकडाउन ना करें। आपको लगता है ये हल है, शहर बंद कर देना, रास्ते बंद कर देना? इससे तो मैं तो समझता हूँ इससे तो कोई हल नहीं, बैठ के कोई मुज़ाकरात करें, अच्छे से मुज़ाकरात करें, उससे हल निकलता है, इससे तो कोई हल नहीं निकलता। जी बिल्कुल, हुकूमत को मशवरा भी दे रहे हैं शहरी के रास्ते बंद कर देना, सिक्योरिटी के नाम पर कंटेनर रखकर तो क्यों हल नहीं है, दरमियान में बैठकर जो है बातचीत की जाए, इनके मुज़ाकरात ही शहरियों के नज़दीक वाहिद हल है, कि शहरों को बंद करना कोई हल नहीं है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे मुल्तानियों से कि हड़ताल, एहतजाज और लॉकडाउन में जो इक़दाम किए गए हैं, इनसे उनका जो कारोबार है वो कितना मुतासिर हुआ है, और इसका जो खामियाजा है वो कौन पूरा करेगा। साथ जो है सीनियर नायब सदर जो है खालिद खेड़ा साहब मौजूद है। खालिद साहब, एक छोटा ताजर जो है वो बड़ी मुश्किल उसका सर्वाइवर होता है, लेकिन ये लॉकडाउन चल रहा है, एहतजाज चल रहे हैं, उसके साथ साथ जो है वो मार्केटें भी बंद करवा दी जाती हैं, क्या कहेंगे, कितने मुतासर हो रहे हैं कारोबार? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सीनियर नायब सदर अंजुमन ताजरान गुलगश्त कॉलोनी मुल्तान। तो बात यह है कि स्मोक शुरू हुई थी तो इन्होंने गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया था, हमने भी कहा ठीक है जी, स्मोक है, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं तो नहीं होना चाहिए। अब स्मोक भी ख़त्म हो गई, जलसे जुलूस भी ख़त्म हो गए, तो यही सीज़न के दिन होते हैं, 2 से 3 माह जो है ये सारा काम के दिन है, लेकिन लॉकडाउन लगा दिया जाता है, ताजरों का इंतहाई नुकसान हो रहा है। और क्या कहें आपको कि पिस रहे हैं ताजर, उधर से बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, पेट्रोल सुना है फिर महंगा किया जा रहा है, और साथ ही लॉकडाउन लगाया जा रहा है। यही 2 से 3 माह होते हैं जो काम होते हैं, शादी के दिन होते हैं, शादियों के सीज़न है, सर्दियों का सीज़न है, और उस काम में जो है बिल्कुल सब ताजरान पिस रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। सर कितने जुर्माने हो चुके हैं आपकी मार्केट को, और कितने लोग जो हैं वो बेरोज़गार हो चुके हैं? हाँ, ये बात भी है। इसमें ये है कि एक तो वो मजिस्ट्रेट साहब सर आ जाते हैं यहाँ पे, और अगर कोई बेचारा गरीब आदमी बैठा है कि 2-4 रुपए कमा ले, अपने भी बच्चों के लिए कोई खाना वाना ले जाए, उसको आके 50-50 हज़ार रुपये तक के जुर्माने कर दिए जाते हैं, जो बेचारा भर भी नहीं सकता, और बेचारा बहुत ही परेशान है ताजर।
ताजर हजरात इस वक्त बहुत परेशान हैं। मेरी गवर्नमेंट से जो भी मुतलका इदारे हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि ये लॉकडाउन फौरी से फौरी ख़त्म किया जाए और रात को 10 बजे 11 बजे तक का जो पहले रूटीन टाइम था वो दिया जाए। एहतजाज, लॉकडाउन, उसके साथ साथ जो है वो दुकानें जो हैं वो उसकी टाइमिंग भी जो है वो 8 बजे रखी गई है। कारोबार कितना मुतासर हो गया? कारोबार यार बहुत ज़्यादा ना ख़राब हो गया है। मसलन भी आवाम निकलती है शाम के टाइम काम शुरू होता है तो दुकानें बंद हो जाती हैं। काम इतना ख़राब हो गया है कि कुछ एडजस्ट नहीं हो पा रहा किसी से भी। तो ऐसा है कि अल्लाह पाक खैरियत करे। लॉकडाउन लगा हुआ है, पता नहीं क्यों लगा हुआ है, ये हमें भी नहीं समझ आ रही। स्मोक तो ख़त्म हो चुकी है। स्मोक तो ख़त्म हो चुकी है, स्मोक है भी नहीं, पता नहीं इन्होंने क्यों लॉकडाउन लगाया हुआ है। बिल्कुल, इस वक्त आप जो है ताज़े से हम जान रहे हैं कि वो इस मुश्किल हालात में जो है क्या कहेंगे जी, सब तरह का हड़ताल, एहतजाज, लॉकडाउन ये चल रहा है, तो कारोबार कितना मुतासर हो गया? तबाह हो गया, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा मुतासर हो गया है। बहुत ज़्यादा दुकानदार भी पीछे आ गया, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है कारोबार को। पहले जो टाइमिंग थी उस दौरान जो है कारोबार कैसा था? कारोबार बहुत अच्छा था, लेकिन अब जो लॉकडाउन की वजह से ना कारोबार तबाह हो गया, बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा मुतासर हो गया। कारोबार का तो सर बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। जो बिज़नेस का टाइम होता है ओवरहाल आपको पता है, रेस्टोरेंट हो गए, ये शॉपिंग मॉल हो गए, और ये हमारा जो बिज़नेस है ये रिलेटिव है टाइमिंग की वजह से। सेकंड टाइम का काम का टाइम होता है, तो उस वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो कारोबार बहुत ज़्यादा बुरी हालत है कारोबारों की। अच्छा, कितने बजे मार्केट बंद कराने आ जाते हैं? वो तो 8 बजे आ जाते हैं बंद करवाने। कितने जुर्माने अब तक हो चुके हैं? मेन पे बहुत सारे जुर्माने हुए हैं, इधर भी हुए हैं जुर्माने काफ़ी सारे। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस काम की वजह से ना। अब ये बंद होना चाहिए, क्योंकि अब वो धुंध का, वो स्मोक का इशू था, वो तो ख़त्म हो गया। अब इनको अब बंद करना चाहिए। ये ज़्यादती है हुकूमत की ना हमारे ताजरों के साथ ना। हमें तो ये नहीं पता कि पहले भी कारोबार नहीं था, लॉकडाउन में अब भी कारोबार ज़्यादा तंग हो गए हैं। को बिजली के बिल है, दुकानों को किराए हैं, हमारे घर से अखरोच जाता है। गवर्नमेंट तो कुछ नहीं सोचती। लॉकडाउन उसे क्या जाता है जो बाहर में मुल्क में किसी का जंग लड़ाई हो, उसे कहते हैं लॉकडाउन। हमने 1962 से लेके अब तक 75 साल के 70 साल के होंगे, हमें घर बैठना चाहिए, मगर क्या है कि हमें मजदूरी करने में मजबूर कर दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट किसी का नहीं सोचती, अपना सोचती है, कि गरीब का नहीं सोचती। हमारा सोचो, गरीब का सोचो। अब 70 साल के बंदे जो घर बैठने खाना खाते थे वो रिक्शा चला रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए ना कुछ सहूलत देनी चाहिए। गवर्नमेंट ये करे कि रेट का, बिजली का रेट कम करे, महंगाई कम करे। महंगाई कहाँ तो कहीं चले गई है। हमने 70-75 सालों में ये देखा कि पाकिस्तान को खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, गरीब आदमी पीछ रहा है। हम खड़े हैं, देखो अब मैं 70 साल का हूँ, मुझे घर बैठना चाहिए, मुझे मजदूरी पे मजबूर करा गया। घर के अखराजात नहीं पूरे होते, गवर्नमेंट अपना घर पड़ती है। गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है, सब कुछ है। हमारा माल ले लेके खा के सारा भारत मुल्क में सारा सरमाया पहुँचाया हुआ है। हम गरीब आदमी एक दूसरे मुंह देख रहे हैं, किसी से 100 रुपये उधार ले रहे हैं, किसी 1000 रुपये उधार ले रहे हैं, किसी से 500 उधार ले, कोई चीज़ बेच रहे, बिजली का बिल भर रहे हैं। आप मेहरबानी करें, जो मौजूदा हुक्मरान है, वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला, आपकी मेहरबानी है कि हमारे पे पाकिस्तान के ऊपर रहम करें, अवाम के ऊपर रहम करें। लॉकडाउन का सिलसिला जो है वो दायरे कार अभी 11 महीने मुद्दत जो है उसमें करी गई है, तो क्या समझते हैं कब तक ये जारी रह सकता है, और आप क्या मुतालबा है आपका? ये गवर्नमेंट एक इशारा करेगी लॉकडाउन बंद हो जाएगा, जब उसने इशारा करा लॉकडाउन शुरू करा है। हमारे को तो नहीं पता इसको क्या करना क्या नहीं चाहिए, हमें दुकान खोल के घर चल लेना। ये गवर्नमेंट का पता चाहिए, करना चाहिए कि लॉकडाउन किस लिए वजह से लगाया है। आप देखो उन्होंने धरना मचा रखा है, उधर बंदे मर रहे हैं। ये लॉकडाउन अब रात को 8 बजे आते हैं, ये चलो जी बंद करो जी। जो दुकानदार बेचारा बैठा किसी को गाँव को डील करके उसको 20,000 30,000 जुर्माना लेके दुकान सील करके चले जाते हैं। यही हम कहते हैं, इसकी थोड़ी नरमी होनी चाहिए, लॉकडाउन हो मगर थोड़ा कम हो जाए। चलो 8 बजे का है, सख्ती ना करें ना, बस खुद ब खुद हम दुकानदार अपने एक दूसरे को देख के बंद कर लेते हैं। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी कि नरमी बरतनी चाहिए, और ख़ास तौर पे ये चाहिए कि थोड़ा बहुत नरमी बरतें। अगर कस्टमर हमारे पास खड़ा है तो उसका भी जो है वो लिहाज किया जाए, और हम उससे डील करके इसके बाद भी दुकानें बंद कर देते हैं। ताजर जो इस वक्त काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपने ताजरों की बात सुनी, ताजरों का कहना है कि महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है, उसके साथ हड़ताल, एहतजाज और लॉकडाउन जैसी सूरत हाल जो है मज़ीद कारोबार को तबाह कर देती है। ख़ास तौर पर वो तबका जो मजदूर तबका है वो इसमें पिस नज़र आ रहा है।